स्टार्टिंग में सबसे पहले बैलेंसेस दिया हुआ है ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, सो यू गो फॉर ओपनिंग एंट्री, राइट? व्हाट्स योर फॉर्मेट ऑफ ओपनिंग एंट्री? Cash at bank account debit, that is bank account debit 50,000. Debtors account debit, that is 15,000. Stock account debit, that is 35,000. Plant and machinery debit, 1 lakh rupees. To creditors account, that is Varsha, 10,000. To bank loan, 40,000. To capital would be 1 lakh, 2 lakh minus 50. 1 lakh 50,000. Capital will be 1 lakh 50,000. Is that clear? Then purchase worth 90,000 from Kangana at 12% GST and paid the amount by check. Entry should be purchase account debit, input CGST, input SGST to bank account, not Kangana's account because it's on credit. Party का नाम दिया है, cash के बारे में कुछ नहीं दिया है. Is that clear? So purchase input to bank. Purchase will be 90,000. Input CGST 10,800. Input SGST 10,800. To bank will be 1 lakh 11,600. 1,11,600. बराबर है? Then we have sold goods to Neha of 30,000 at 18% GST. This is on credit, so it is Neha account debit to sales to output CGST to output SGST. Neha account debit sales will be 30,000. GST will be 2,700. Neha account debit will be 35,400. Neha debit 35,400 to sales 30,000 to output CGST 2,700 to output SGST 2,700. Then can you repeat the first one, Kamna? Purchase account debit 90,000. Input CGST debit 5400. Input SGST 5400 to bank 1,08,000. 1,08,000. बराबर. आई थिंक इससे पहले मैंने गड़बड़ किया, मैंने 12% ले लिया था शायद. I don't remember. अभी purchase account debit will be 90,000. Input CGST will be 5400. Input SGST will be 5400. To bank will be 1,08,000. 1,008,000. Is that clear? 12% है तो 6% जाएगा. Then sold goods to Neha. Then sold goods to payment received by check. So entry will be bank account debit. Bank account debit to sales account to output CGST to output SGST. So sales में आएगा 50,000. CGST SGST will be 7,000 each. And bank में आएगा 64,000. So bank account debit 64,000 to sales 50,000 to output CGST 7 to output SGST 7,000. Is that clear? Then purchased goods for cash at 50,000, 18% GST less 10% cash discount. तो यहाँ पे आपका एंट्री होना चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड. पहले तो 50,000 पे you have to take 18% GST, 99%, which is 4500, 4500. Total value is 59,000. But that cash discount of 10% will be on 50,000 before GST वाले amount पे होगा. So 5,000 will be your CD amount. So entry will be purchase account debit 50,000, input CGST debit 4,500, input SGST 4,500. To cash will be 54,000. To discount receive will be 5,000. Is that clear? Once again, I'll repeat. This one was very important. 14th one. Purchase account debit will be 50,000, 50. Input CGST debit 4,500. Input SGST debit 4,500. To cash will be 54,000. To discount received will be 5,000. Okay. Paid for advertisement. Entry is advertisement to cash. Purchased a horse and paid carriage charges. Entry is livestock to cash. Total कर देना है 42,000. Paid for printing and stationery 11,000. Entry is printing and stationery to cash 11,000. Sold goods to Alok for cash 13,000 at 12% GST less 10% cash discount.
Entry will be cash account debit, discount allowed account debit to sales to output SGST. पहला क्या करना है, 13,000 पे you need to take 12% GST, that is 780 6%. So the total value is, I think, 14,560. Okay, but जब CD लेने की बारी आएगी तब 14,560 पे नहीं लेना है, 13,000 पे लेना है before GST value. 13,000 का 10% will be 1,300. That will be your CD value, and entry will be cash account debit. Cash account debit will be 13,260. 13,260. 14,560 minus 1,300. यहाँ पे गड़बड़ मिला था मेरे को. So cash account debit 13,260. Discount allowed debit 1,300. To sales 13,000. To output CGST 780 to output SGST 780. Is this clear? Once again, cash account debit 13,260. Discount allowed debit 1,300. To sales 13,000. To output CGST 780 to output SGST 780. Is it clear? Received an amount of 1,000 from Varsha, which was previously written off as bad. Entry will be cash account debit to bad debts recovery account 1,000. Goods costing 5,000 distributed as free samples. It is advertisement to goods distributed as free samples 5,000. Advertisement to goods distributed as free samples 5,000. Hope that is clear. Any doubt? I think in the solution they have given it perfectly this time. No mistakes. You can check it from the solution. No, sir, there is a mistake. There is? In the third transaction, if you can see over there, they have given 55,400, but in the question, they have written that there is sales of 30,000. Neha. Difference of 20,000. Neha na, Neha wala 30,000. Yeah. So 30,000 पे 18% देना है. Yeah. Printing error है, yes. 50,000 and 30,000. GST बराबर किया है, I think वो लोग ने calculate. खाली amount लिखते वक्त 50 लिख दिया है. But on livestock, why do we take carriage charges separately? We are not taking separately. We are adding it to livestock. 42,000 livestock to cash. They have given separately. No, it's together. It's there on the screen. Okay. साथ में ही आएगा because livestock is an asset. तो asset पे खरीदा हुआ जो भी खर्चा add up to the cost of asset. खाली goods का carriage है तो it will be separate. So any doubt in the homework part then? अभी clear है CD GST को? Yeah. I had a doubt in endorsement entry. Endorsement of a check? Yes. So in that, if Monali is giving us a check and we are giving it to Anita, then can't we write Anita to Monali? Anita to Monali लिख सकते हैं. It is not entirely wrong. But कैसा होता है आगे जाके you will learn when you do cash book. Okay, cash book आप learn करोगे तो उसमें आप कैश बुक के खाली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हो. कैश आया, कैश गया. और कभी कभी क्या होता है सेम डे एंडोर्स नहीं होता है. प्रीवियस मंथ में चेक आता है, 2-3 दिन बाद एंडोर्स होता है. तो मंथली बैलेंस चेंजेस ड्यू टू दैट एंट्री. तो इट्स बेटर इफ यू रिकॉर्ड बोथ. अभी जर्नल में तो कंबाइंड चल जाता है बट कैश बुक करते वक्त आपको 2 सेपरेट एंट्रीज ही करनी है. तो बेटर कि अभी से चालू कर दो क्योंकि बाद में क्या आप लोग जब लेजर करोगे कैश बुक एंड लेजर पार्ट तभी एक महीने के ट्रांजैक्शंस विल रिकॉर्ड और एक महीने के एंड में विल फाइंड आउट समथिंग दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस. तो कितना बैलेंस बचा. तो अगर आपको एक चेक 31st को आया है, रिसीव किया है और 2-3 दिन बाद आपने उसको फॉरवर्ड किया, एंडोर्स किया हुआ है तो मंथली बैलेंस डिफर हो जाएगा वो अगर वो आप एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते हो. ओके, दैट विल मेक अ डिफरेंस. सो बेटर इट इज इफ यू पास 2 सेपरेट कैश टू पार्टी एंड पार्टी टू कैश for endorsed check. Okay, do mention but mention only cash क्योंकि बैंक तक पैसा नहीं गया. तो cash to party and party to cash.
That's it. Let's move to the theory part where we left in the last और lecture. Yes. सर हम लोग को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वो लोग सिर्फ देंगे कि पहले वो लोग सिर्फ ओपनिंग एंट्री देंगे, so we have to assume that it is the month of April. नहीं, dates will be specified. डेट्स देंगे, मंथ मंथ Now, month, date, year, everything would be specified. Do not assume it. Month, date, year, everything would be given. I think we stopped at contingent liability. Do you remember what was contingent liability? What was contingent Which liability? has not happened but has chances to happen in the may happen, May or may not happen. It's such a liability that may or may not happen. Uncertain liability, dependent on a future event that is uncertain. That's called as a contingent liability. Okay. Then we learn the concepts. Now, concepts में हमने काफी सारे concepts already discuss किए हुए हैं. Let's brush it up. What are concepts, conventions, rules, principles? These are all overlapping things. इसमें कोई identifying line नहीं है. Concepts, conventions, principles, okay, in some rules of accounting. These are all unsaid rules of accounting. पहले से चले आ रहे हैं, सिस्टमैटिक जैसे आप रिकॉर्ड करते आ रहे थे, सिस्टम्स जैसे बनते आ रहे थे, उसके हिसाब से आप उसको इंक्लूड करते जा रहे थे. So these are all unsaid rules which are followed throughout the generations. Okay, जो easy पड़ रहा है, जो better हो रहा है बिजनेस के लिए, उसके हिसाब से ये concepts follow होते आ रहे हैं. कंसेप्ट किसी ने बोला नहीं है, किसी ने बनाया नहीं है, प्रथा ऑटोमेटिकली ये फॉलो होते जा रहे हैं ट्रेडिशन के जैसे. तो कंसेप्ट्स ऐसा जरूरी नहीं है कि परमानेंटली सेम रहे. कंसेप्ट्स भी प्रेजेंट डे वर्ल्ड के हिसाब से थोड़े 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 चेंज होते रहते हैं. इट्स लाइक योर ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स. ओके, घर पे जो ट्रेडिशंस हम फॉलो करते हैं, पहले कैसा है, पूजा के लिए 6 बजे उठ जाते थे, नहा धो के आधा घंटा पूजा करते थे, फिर धीरे धीरे 7 बजे उठने लगे, फिर धीरे धीरे पूजा बंद कर दी, फिर धीरे धीरे नहाना भी बंद कर दिया. तो ऐसे ये ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स आपके डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वी कीप ऑन चेंजिंग द रिक्वायरमेंट कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स जो भी हमारे, उसके हिसाब से हम लोग चेंज करके बुक कीपिंग में इंक्लूड करते जाते हैं. जो बेटर हो बिजनेस के लिए, जो बेटर हो प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, उसके हिसाब से ये कंसेप्ट चेंज होते जाते हैं. तो ऐसा मत समझना कि ये कंसेप्ट हो गए तो थप्पा लग गया, लाइफ टाइम तक कभी चेंज नहीं होने वाले. ऐसी चीज नहीं है. ओके, इट्स लाइक लॉ. ओके, लॉ जो अपने कंट्री को गवर्न करता है. ओके, 50 साल पहले कुछ और लॉज थे, अभी कुछ और लॉज हैं, मे भी कुछ सालों बाद वो लॉज चेंज हो जाए, कुछ और लॉज आ जाए, नए लॉज आ जाए. ओके, so laws also keep on changing, bills gets amended, laws get included with different stuff. वैसे ही अकाउंटिंग concepts, conventions and principles. ठीक है, तो ये अभी ये concepts फॉलो हो रहे हैं, आगे जाके बेटर प्रेजेंटेशन के लिए चेंजेस भी इनकलकेट कर सकते हैं आप. ठीक है, तो इसमें हमने लर्न किया था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. याद है किसी को बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? सबसे पहला कंसेप्ट वी लर्न. What does business entity concept business say? and businessmen are two different separate entities. Business and businessmen are two different entities. Business and businessmen are two separate entities. We have to always think from whose point of view? business point. Business का point of view. अब ये concept, सभी concept change हो ऐसे जरूरी नहीं है. बहुत सारे जो follow करते आ रहे हैं, थोड़े बहुत 19-20 कभी कभार जरूरत पड़े तो भी change it. That is it. तो ये entity concept तो ये है ही, सब जगह applicable ही है कि businessman business दोनों अलग है. That's why business के लिए capital is a liability. Owner का पैसा है, उसको वापस देना बाकी है. And for owner it is like an asset. उसको business से पैसा लेना बाकी है. Are you understanding? For business a capital is a liability. For owner that capital is an asset. उसको लेना बाकी है. So we always think from business point of view so that we are able to keep personal records and business records separately, and we can concentrate on business activities and find out profit and loss perfectly. Got it? So business entity concept very important. Business and businessmen two separate entities. Money measurement concept. Money measurement शायद मैंने बताया था, I don't remember. Money measurement, remember anyone? Money measurement concept बताया था शायद, I remember. Yeah. Money measurement concept. What does money measurement concept state, guys?
all the transactions should be recorded by its monetary value, and transactions which do not deal in terms of money cannot be recorded. Cannot be recorded. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. ओके, बुक कीपिंग का एक शॉर्ट कमिंग भी है, अकाउंटेंसी का एक शॉर्ट कमिंग भी है और एक कंसेप्ट भी है. ओके, कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि अकाउंटेंसी बुक कीपिंग में हम लोग क्या फॉलो करते हैं, वी रिकॉर्ड ओनली दोज आइटम्स विच हैव गॉट मॉनिटरी वैल्यू, विच हैव गॉट मनी वैल्यू. मतलब जिस आइटम की मॉनिटरी वैल्यू कन्वर्ट हो सकती है, मनी वैल्यू में वो कन्वर्ट हो सकता है, डॉलर, रुपी, पाउंड, any currency, but it should be able to be converted into monetary terms. Only then we can record. Unless and until it can be converted in monetary terms, it is not recorded. Like human beings. याद है आपको बताया था? Do we record human beings in the books of accounts? No. Because human beings का कोई value नहीं होता है, right? You cannot value a human being in monetary terms. But human beings are very important asset of any business. इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, उसके वजह से ही बिजनेस चालू रहता है. बट पॉसिबल नहीं होता उसको रिकॉर्ड करना, तो वी कैन नॉट, so we don't. Whereas any other stuff like any other way of measurement, like in kilos, like food grains are measured in kilos, the milk is measured in liters. So can I enter 5 liter milk to cash? Can I write 5 liter milk to cash? Is it possible? एक कैश लिखा, एक मिल्क लीटर्स में लिखा, नो. क्वांटिटेटिव आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, ओनली मनी वैल्यू कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. दैट इज द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट स्टेट्स दैट monetary value is recorded, and those items which can be converted into money value can only be recorded. No other unit of measurement is used apart from money, okay, in bookkeeping. Cost concept. Remember cost concept we have done many times. This is mainly for fixed assets or investments or long-term assets. So whenever you acquire any long-term asset, it is recorded at historical cost. Historical cost का meaning क्या होता है, जो हम करते हैं, original cost plus all the expenses incurred till the time of purchase. That is what is called as historical cost. So any asset purchase is entered at historical cost. अच्छा, उसके बाद ये cost concept एक और चीज क्या बोलता है कि अगर आपने कोई एसेट खरीद लिया, उसके बाद उसकी मार्केट वैल्यू चेंज हो गई, तो आप घड़ी घड़ी अपने बुक्स में उन एसेट की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे. से फॉर एग्जाम्पल, मैंने लैपटॉप खरीदा HP का 40,000 रुपीज का, उसके ऊपर खर्चा हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, नया सॉफ्टवेयर डाला, तो 45,000 रुपीज हो गया. तो मैं अपने बुक में वो लैपटॉप 45,000 रुपीज का दिखा दूंगा. अब कल उठ के 2 महीने बाद मार्केट में उसका प्राइस 43 हो गया, 42,000 हो गया, या सडनली डिमांड बढ़ गई 47,000 हो गया, 50,000. So I will not keep on changing the value of that laptop in my books continuously. Why? Am I going to get that profit or loss? Am I going to sell that laptop? No, I'm not going to sell it. I'm just going to use it, right? Whenever I sell it, that time automatically I'll arrive at the profit or loss point. So in case of fixed asset, this is very important concept. The fixed assets are maintained generally at historical cost. Historical cost का मतलब आपने जो प्राइस पे खरीदा है उसको आप उसी प्राइस पे उसको दिखाते. मार्केट में प्राइसेस फ्लक्चुएट होने दो, उससे आपको लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे करते रहोगे, कल उठ के 43 हुआ, इधर 43 कर दिया, 2000 का लॉस बता दिया, फिर 50 हो गया, आपने 43 का 50 कर दिया, 7,000 का प्रॉफिट बता दिया, तो आप इसी में घूम जाओगे. आपको एक्चुअल बिजनेस का प्रॉफिट लॉस का आइडिया ही नहीं आएगा, तो प्रॉफिट लॉस हो रहा है अभी कि नहीं हो रहा है. प्रॉफिट लॉस इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, एवरी ईयर का रिकरिंग इनकम एंड एवरी ईयर का रिकरिंग एक्सपेंस. आप जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट होता है प्रॉफिट. गेटिंग दैट? ये तो आपका एसेट पड़ा हुआ है, इसमें कोई फ्लक्चुएशन होने दो बाहर, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट. इज इट क्लियर? बट इंटरनेशनली and now in India also, this concept is getting changed and what you can say, twerked slightly. Okay,
क्या हो रहा है चेंजेस इसमें? ये अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल लैंड है, आपने एक जमीन का 1 एकड़ जमीन 1 acre ऑफ लैंड यू परचेज 10 years अगो फॉर 1 लाख रुपीज। 10 साल पहले आपने लैंड खरीदी थी 1 लाख रुपीज, 1 acre 1 लाख रुपीज की लैंड 10 years अगो यू बॉट इट। टुडे द वैल्यू ऑफ दैट लैंड इज 8 lakh rupees। टुडे द वैल्यू ऑफ दैट लैंड इज 8 lakh rupees। अब आपको ऐसा पक्का लगता है कि अब 8 लाख से नीचे तो जाने का सवाल ही नहीं है ये जमीन का वैल्यू। 8 लाख 7 लाख के तो चलो नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि मार्केट ही ऐसा हो गया, बढ़ गया। अभी मैं आपको बोलूं कि घाटकोपर में 1 BHK मेरे को कोई 10 लाख में दे दे, इज इट पॉसिबल? 1 BHK इन 10 लाख इन घाटकोपर? एटलीस्ट इट इज 40 to 50 lakhs एटलीस्ट, उसके नीचे तो मिलेगा नहीं, बराबर है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए कि जहां पे आप श्योर हो जाओ कि आपकी वैल्यू ऑफ एसेट बिल्कुल ही कम नहीं होगी, या ऐसे श्योर हो जाओ कि बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगी, तो आप उस वैल्यू को एक बार ही चेंज कर सकते हो। उसको कहते हैं रीवैल्यूएशन। इट इज कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन करना चाहिए, एसेट की वैल्यू प्रेजेंट मार्केट वैल्यू पे लानी चाहिए, लेकिन घड़ी घड़ी नहीं। घड़ी घड़ी करते रहोगे आप पागल हो जाओगे, आपको एग्जैक्ट बिजनेस का प्रॉफिट लॉस कभी पता ही नहीं चलेगा। घड़ी घड़ी नहीं करने का। आप श्योर हो रहे हो कि ये ट्रेंड यहाँ पे आ गया है, 7 लाख के नीचे जाने वाला नहीं है, ऑब्वियसली आप दूसरे आर्बिट्रेटर्स वैल्यूअर्स से कंसल्ट करोगे, और एक बार 7 लाख, तो आप अपनी लैंड की वैल्यू 7 लाख कर दोगे। तो 1 लाख से हो जाएगी 7 लाख, और 6 लाख का प्रॉफिट आप रिकॉर्ड कर दोगे। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है, यू आर नॉट सपोज टू डू ऑन रेकरिंग दिस। ओनली वी आर डैम श्योर दैट यस इट इज गोइंग टू इंक्रीज, इससे कम नहीं होगा, तो जाके once or twice in the life of an asset you can change the value, you can revalue it, you can record that profit or loss. Is this clear? सर वो रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या होगी? इट इज अ नॉन कैश इनकम। जैसे डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। व्हाट इज द एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, इट्स एन एक्सपेंस टू एसेट अकाउंट। एसेट इज गोइंग आउट, कैश इज नॉट गोइंग आउट, एसेट घट रहा है। वैसे इट इज लाइक एन अप्रिसिएशन। तो अप्रिसिएशन को हम रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन बोलते हैं। तो इसकी एंट्री होगी तुम्हारी एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट वैल्यू बढ़ रही है, एसेट इज इंक्रीजिंग, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व या टू अप्रिसिएशन, दैट्स योर गेन। तो क्रेडिट दैट गेन एंड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट। गेन बढ़ा क्रेडिट, एसेट बढ़ा डेबिट। इज इट क्लियर? एसेट टू रिवैल्यूएशन, गॉट इट? So that is what is cost concept. Cost concept सबको समझ आ गया? What is cost concept? Basically record your assets at historical cost. Do not change them. You change them only when it is very sure, very certain that the assets have attained a certain value and they will not fall from there. They will not decrease from there. Okay. Next one But is sir अभी तक इनकम आई नहीं है ना? यस, इनकम आई नहीं है, अनरियलाइज्ड है, इसलिए रिकॉर्ड करना गलत होता है। बट अभी ये मैंने इसलिए बोला कि ये 7 लाख के नीचे जाने का चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है, तब जाके आपको। बट सर इसका यूज क्या है? जब हम लोग बेचेंगे तभी अभी 7 लाख के नीचे नहीं जाने वाला है, तो डेफिनेटली 7 लाख के ऊपर जाएगा, तो कोई प्रॉफिट रिकॉर्ड होने वाला है। परफेक्ट। इसका यूज ये है कि आपका बुक कीपिंग अकाउंटेंसी एक कंसेप्ट आएगा एक और आगे, वो डिस्क्लोजर कंसेप्ट। डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या बोलता है कि डिस्क्लोज योर अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स इन ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब आपको अकाउंट्स में क्या दिखाना है, जो है वो दिखाना है, सच्चाई दिखानी है, अच्छा करके भी नहीं दिखाना है, बुरा करके भी नहीं दिखाना है। तो वॉट एवर इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस, वॉट एवर इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, whatever are the actual expense and income incurred or earned, वो दिखाना। तो ग्लॉसी अच्छा करके भी नहीं दिखाना और बुरा करके भी नहीं दिखाना। तो देयर आर, ये पुरातन टाइम से ऐसे ही चलते आ रहा था, कॉस्ट पे ही चलते आ, बट रिसेंट ईयर्स में
some new accountants, new philosophy वाले accountants, they are of the assumption that ये अगर मैं लैंड 1 लाख पे दिखाऊं तो ये ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट नहीं दिखा रहा, क्योंकि आज के डेट में लैंड की वैल्यू हो गई है 7 लाख। तो ये बिजनेस का ट्रू वैल्यू पोर्ट्रे नहीं कर रहा, इसको फेयर वैल्यू, ट्रू वैल्यू पे पोर्ट्रे करने के लिए इट्स बेटर इफ यू वैल्यू द लैंड एट 7 लाख। तो ट्रू एंड फेयर वो क्या है, आप ऐसे बता रहे हो कि नहीं ये 1 लाख ही है, आप बुक्स में दिखा रहे हो 1 लाख है, मतलब अभी ये 1 लाख ही है, ऐसा दिखा रहे हो। फिर आप जब बेचोगे और सडन प्रॉफिट हो गया, वेल एंड गुड, बट फिलहाल आप ऐसे दिखा रहे हो कि ये 1 लाख ही है। इट्स नॉट गिविंग यू अ ट्रू पिक्चर ऑफ व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये आपको सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में इतना प्रॉब्लम एरिया नहीं है। कंपनीज जो होती है ना बड़ी बड़ी, अभी कोई कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदने लेने वाली है, खरीदने आने वाली, तो उसकी बैलेंस शीट चेक करेगी, बैलेंस शीट में लैंड देखेगी, तो देखेगी 1 लाख रुपीज है, बोला ये तो बहुत सस्ती कंपनी है, चलो कल उठ के खरीद लेते हैं। खरीदने जाएंगे तब पता चलेगा अरे बाप रे ये लैंड की वैल्यू तो अभी 7 लाख हो गई, तो ये बिजनेस खरीदने लायक नहीं है। हाउ डू यू वैल्यू अ बिजनेस? द बैलेंस शीट इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस, assets minus liability, that is what is the value of a business. To get true picture, it's better if you keep the asset at as true value as possible. That is the reason we keep, nowadays we are trying to have some changes in the values of assets. Okay? Got this one? Next one is consistency concept. Okay, what is this consistency concept? ये आपको अभी इतना काम का नहीं है, नेक्स्ट ईयर एंड सीए एंड ऑल व्हेन यू डू विल कम टू नो। कंसिस्टेंसी क्या है बेसिकली, एक बार कंपनी ने कोई पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, ओके, पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, रूल अडॉप्ट कर लिया, तो उससे डाइवर्ट नहीं होना, उससे स्टिक टू रहना है। इससे क्या होगा, एक कंसिस्टेंट लेवल, एक कंसिस्टेंसी का मतलब एक कंसिस्टेंट पैटर्न फॉलो होगी बिजनेस की, जिसकी वजह से आप हर साल प्रॉफिट को कंपेयर कर पाओगे। एवरी ईयर यू विल बी एबल टू कंपेयर योर प्रॉफिट। आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। आपको वेट लॉस करना है, आप ओवरवेट हो, आपको वेट लॉस करना है, आपने डिसाइड किया मैं रोज 2 किलोमीटर जॉगिंग करूंगा, तो आप रोज 2 किलोमीटर जॉगिंग कर रहे हो, 2 किलोमीटर कर रहे हो, एक वीक के बाद आपने चेक किया आपका वजन आधा किलो कम हो गया था। फिर आपने नेक्स्ट वीक वापस 2 किलोमीटर हर रोज जॉगिंग की, फिर आपका वजन वापस ½ kg कम हुआ, फिर वापस 2 किलोमीटर की, फिर 3/4 kg कम हो गया। तो डाइट फॉलो की, जॉगिंग कर रहे हो, तो ये आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो, तो आप अपने रिजल्ट को कंपेयर कर रहे हो कि हाँ बराबर है, 2 किलोमीटर में भाग रहा हूँ, आधा किलो कम हो रहा है, 2 किलोमीटर भाग रहा हूँ, आधा किलो कम हो रहा है। फिर नेक्स्ट वीक आपने 4 किलोमीटर भागना शुरू किया, एक वीक बाद आपको पता चला 1 किलो वजन कम हो गया, 1 kg और वेट रिड्यूस। तो बराबर आप रिलेट कर पा रहे हो ना इस ट्रेंड को, कि मैंने 2 किलोमीटर भागा एक हफ्ता तो आधा किलो कम हुआ, मैंने 4 किलोमीटर भागा तो 1 किलो कम हो गया मेरा वजन। So there is a trend. You are able to compare your readings, right? Same goes for companies. Companies भी अगर अपने rules consistently follow करे तो उनके results comparable होते हैं, आप हर साल profits को compare कर सकते हो। For example, sales income को record करने की policy होती है, कंपनी होती है कि उसको अपनी sales income कैसे record करनी है। या तो वो जब गुड्स डिस्पैच कर दिए तब रिकॉर्ड करती है, या तो कोई कंपनी इनवॉइस डिस्पैच करने पर रिकॉर्ड कर देती है, बोलेगी गुड्स तो आगे पीछे जाते रहेंगे, इनवॉइस चला गया सेल रिकॉर्ड कर दो। इनवॉइस इज द बिल, विल लर्न हाउ टू प्रिपेयर दैट इन द नेक्स्ट चैप्टर। सो बिल चला गया सेल रिकॉर्ड कर दो, या फिर गुड्स चला गया सेल रिकॉर्ड कर दो, या फिर कोई कंपनी लीनियंट होती है, बोलती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले हुआ, सेल पहले हुआ तो गुड्स पहले गया तो गुड्स रिकॉर्ड कर दो, तो भी सेल रिकॉर्ड कर दो, या फिर इनवॉइस पहले चला गया तो भी सेल रिकॉर्ड कर दो। तो ये कंपनी के इंटरनल रूल होते हैं। अभी ये जो रूल उसने फॉलो किए हैं उसको स्टिक टू रहना है, कोई भी रूल कर सकती है अडॉप्ट, उसकी मर्जी। सपोज मैंने रूल अडॉप्ट किया कि इनवॉइस जाने पे मैं सेल रिकॉर्ड करूं, तो इनवॉइस डिस्पैच पे ही हर साल करना है, ऐसा नहीं करना है कि ये साल तुमने इनवॉइस डिस्पैच पे सेल रिकॉर्ड किया,
2 साल ऐसे किया, 2 साल बाद सोचा कि नहीं अभी गुड्स डिस्पैच पे सेल रिकॉर्ड करूंगा। ऐसे शिफ्ट नहीं करना है। इससे क्या लफड़ा होगा, जो आपके इनकम स्टेटमेंट पढ़ रहा है, जो आपके अकाउंट्स देख रहा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। वो बोलेगा साला इधर तो इनवॉइस गया नहीं है और इनकम कैसे आ गई। 2 साल बाद देखेगा साला इनवॉइस गया है और इनकम आ गई। तो he'll get confused. He'll not be able to predict the result. Even your managers wouldn't be able to predict the result, correct profit or loss, or trend of profit or loss. So this is one of an example, just an example of a policy. Like that, there are many policies in the business. Policies basically क्या होता है, internal rule, कंपनी जो डिसाइड करती है अपने लिए, वो रूल जो भी वो डिसाइड करेगी, जैसे ये एक रूल था, परचेज का सेम पॉलिसी हो सकता है। परचेज का इनवॉइस आने पे आप परचेज रिकॉर्ड करोगे, दैट इज अ पॉलिसी। या आप सोचोगे नहीं इनवॉइस पहले आए नहीं, गुड्स जब भी आएंगे तभी मैं रिकॉर्ड करूँ। इनवॉइस कभी भी आए, मेरे पास गुड्स आ जाएंगे तो मैं परचेज की एंट्री करूंगा। कोई बोलेगी नहीं वॉट एवर कम्स फर्स्ट, इनवॉइस पहले आया गुड्स पहले आया मैं रिकॉर्ड करूँ। तो whatever policy you want to choose, you choose, it's absolutely fine, but stick to it. Stick to it so that your expense, income, profit, loss will be comparable and results would be comparable. So this is one of an example of policy. Like that, there are other examples you will learn in higher standards, 12th standard. Abhi aayega depreciation chapter mein. There are 2 methods of depreciation, FIM, RBM. The company can choose either of them. But if it chooses a particular method, it should remain constant. It should stick to it. It should not keep on diverting. स्टॉक वैल्यूएशन के मेथड होते हैं, फीफो लीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो वेटेड एवरेज मेथड होता है। तो एक मेथड चूज कर लिया, उसी पे स्टिक टू रहने का, चेंज नहीं करना। क्लियर? सो बोलने का मतलब कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या बोलता है, when you adopt a rule for a company or a business, stick to that rule. Don't keep on jumping from one rule to the another. Okay, unless and until very much necessary, you should not shift. That is what is consistent. Got this? So first 4 concepts, all of you are clear? First 4 concepts. First one was what? Business entity concept. रट्टा नहीं माने, समझना है खाली। ओन वर्ड्स में किधर लिखने को पूछा तो लिख सकते, बाकी मीनिंग जरूरी है यहाँ पे, एंड ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं और किधर। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इज व्हाट? बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 separate entities. There is a line of difference between personal transaction and business transaction. Business only enters business entry. That's why capital is a liability, देना बाकी है, और owner capital is an asset. What is money measurement concept? Everything in books of accounts is recorded in monetary terms. Not in kilos, not in liters, not in quintals. Okay, it is always in monetary terms, and those things which cannot be converted to money cannot be recorded. Cost concept, fixed asset. Whenever you buy any fixed asset, you need to record them at historical cost. What is historical cost? Original cost plus all the kharcha. Transport, carriage, import duty, installation, fixation, all the kharcha you add up to the cost and maintain it. Whenever there is change in market value, don't keep on changing it. Okay, rarely you change it. Otherwise you keep it as it is. And the last one was conservatism. What is conservatism? When the company consistency, when the company adopts a policy or rule, it should not change it frequently. It should keep it consistent over long periods of time. Okay. 5th one we have discussed already. Does anyone remember conservatism? Always overstate your liabilities and expenses, and always understate your assets and income. Right. ओवरस्टेट और अंडरस्टेट से बेटर है आप बोल सकते हो कि शो और प्रोवाइड फॉर एक्सपेंसेस इन एडवांस बट डोंट प्रोवाइड फॉर गेन्स इन एडवांस. ओके, बेसिकली जो दिखाना दिखाओ एसेट लायबिलिटी, बट अगर फ्यूचर में इफ यू फील दैट सम एक्सपेंस इज गोइंग टू अकर, if there is a probable chance that some expense will occur in future, so then you record it immediately as an expense.
अभी रिकॉर्ड कर दो एज एन एक्सपेंस। फ्यूचर का वाट मत देखो। पेपर खराब गया है, मम्मी डैडी को बोल दो आज ये पेपर खराब गया है, तो रिजल्ट के दिन कम मार पड़ेगा। आज बोलोगे अच्छा गया है और जाके रिजल्ट के दिन खराब निकला तो डबल मार पड़ेगी। दिस इज ह्यूमन साइकोलॉजी। ओके, तो ये आपका सेम थिंग कंपनीज को बहुत मैटर करता है। कंपनीज को ये चीजें बहुत मैटर करती हैं क्योंकि उनके बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। कंपनी बोलेगी ये साल अच्छा नफा होगा, इतना इतना इनकम होगा, और फिर लॉस हो गया तो शेयर होल्डर चढ़ जाएंगे, कंपनी का शेयर प्राइस आधा कर देंगे। ओके, वैसे ही कंपनी बोल रही है कि एकदम अच्छा साल नहीं गया हमारा, प्रॉफिट के ज्यादा चांस नहीं है, शेयर होल्डर को धक्का दे दिया, झोटका झटका धीरे से दे दिया और फिर अच्छे खासे प्रॉफिट हो गए तो शेयर इन्वेस्टर्स तो बहुत ज्यादा राजी खुशी हो जाएंगे। दिस इज अ ह्यूमन टेंडेंसी। So based on that, this is the concept we need to follow in accountancy. Conservatism. What does it state? Provide for losses but never provide for gains in advance. आपको अगर लगता है कि कुछ लॉसेस इनकर होने वाले हैं फ्यूचर में, तो आप उनको एडवांस में रिकॉर्ड कर दो, अभी रिकॉर्ड कर दो, बुक्स में एंटर कर दो एज एन एक्सपेंस, ठीक है। बट आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई गेन्स होने वाली है, विल यू रिकॉर्ड देम इन एडवांस? आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई फायदा होने वाला है, गेन होने वाला है, विल यू रिकॉर्ड देम इन एडवांस? No. नेवर ओके, ओनली लॉसेस इफ यू फील यू रिकॉर्ड। गेन्स आप नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। गेन्स आप तब भी करोगे जब रियलाइज होंगे। कि आगे एक और कंसेप्ट आएगा, रियलाइजेशन। तो रियलाइज होंगे तब भी रिकॉर्ड करो, तभी ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आने वाला है बुक्स में, सब खुश हो जाएंगे। ओके, कहीं भागने वाला तो है नहीं आपका प्रॉफिट, टेंशन लेने वाली क्या बात है। फिर लेकिन लफड़ा क्या हो जाएगा, आपने एडवांस में गेन रिकॉर्ड कर दी और बाद में वो गेन हुई ना, तो फिर दैट इज अ बिग इश्यू, राइट। आपको मम्मी डैडी ने बोला આપણે જશું शिमला फरवा માટે और फिर बोला अरे प्लान कैंसिल, तो दुख हो जाएगा ना। वैसे इसकी जगह आपको बुलाया महीने से और सीधा टिकट विकेट बुक करके सरप्राइज दिया शिमला, तो क्या खुशी होगी आपको? सॉलिड खुशी होगी। तो दिस इज व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर। इस पे एक बहुत अच्छा केस स्टडी है, एनरॉन। हैव यू एवर heard about Enron disaster happened in the year, आप तो पैदा भी नहीं होंगे कैसे, 2003 आसपास हुआ था। एनरॉन का नाम सुना है कभी? एनरॉन यूएसए में बिगेस्ट डिजास्टर, अकाउंटिंग फ्रॉड। तो एनरॉन एक कंपनी थी यूएसए की, उसका बिजनेस पूरा शेडी बिजनेस था, झोल वाला बिजनेस था, सट्टा करने का काम करती थी, सिर्फ ट्रेडिंग, स्पेक्यूलेशन। और वो ये अकाउंटिंग कंसेप्ट को वायलेट करके अपने बुक्स में रिकॉर्ड करती थी एंट्रीज। तो वो क्या करती थी, अभी उसके बिजनेस ने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको अगले 10, 20, 30 सालों में जो प्रॉफिट होने वाले थे वो अभी से रिकॉर्ड करना चालू कर देगी। हम तो एक साल के भी नहीं करते, वो अगले 10, 20, 30 सालों के प्रॉफिट एडवांस में दिखा देती थी कुछ। और शेयर होल्डर को लगता था वाह इतनी अच्छी कंपनी, वाह इतने बड़े शेयर, इतना पैसा, ये वो। एंड कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ते गया, सब लोग को लगा एनरॉन 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 क्या कंपनी है, किसी को पता ही नहीं अंदर क्या चालू है, झोल झपाटा। फिर जब उस पे एसईसी, जैसे यहाँ पे सेबी होता है इंडिया में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, वैसे वहां पे एसईसी होता है यूएसए, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। उसने रेड वेड डाली, उसने ढूंढा कि भैया क्या चालू है, ढूंढो इसमें। तब पता चला कि भाई ये कर रहा है, आने वाली सभी इनकम अभी रिकॉर्ड कर रहा है जो हवा में अभी तक हुई नहीं है रियलाइज। और फिर भोपाड़ा बाहर निकला और कंपनी का शेयर प्राइस हो गया ऑलमोस्ट 0, और उसके डायरेक्टर को भी अंदर किया जेल में, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर को भी अंदर किया, चेयरमैन को भी अंदर किया। चेयरमैन या एमडी, चेयरमैन बेचारा सुसाइड कर दिया, ऐसी हालत हो गई। बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड, अकाउंटिंग फ्रॉड इन द हिस्ट्री, 60-70 बिलियन डॉलर का फ्रॉड था एनरॉन। तो उसमें ये कंसेप्ट बहुत गलत तरीके से अप्लाई हुआ था। तो अकाउंटेंट का जॉब होता है कि वो ये ढूंढे, ऑडिट करे, चेक करे और बाहर बताए। ओके,
So this is very important concept, conservatism. Okay, remember this. Next concept is going concern concept. What is going concern concept? ये भी हमने किया हुआ है. Business would continue for a long time. Exactly. Yeah. Business will continue for a long period of time. That is the basic assumption behind any business. Okay. कोई भी business आप करते हो, start करते हो, चालू होता है या हो रहा है continuation में भी, sorry, आप assume करते हो that this will continue for a long period of time. That's why we show a distinction, right? Expense अलग दिखाते हो, asset अलग दिखाते हो. कल ही हमने डिस्कस किया था, याद है? Capital expenditure, revenue expenditure, fixed assets and expenditure. Fixed assets are assets having a life of more than a year, and expenses are having a life of less than a year. उनको आप अलग दिखाते हो प्रॉफिट एंड लॉस में, फिक्स्ड एसेट को अलग दिखाते हो, उसको जितना यूज किया फिक्स्ड एसेट को उसको आप डेप्रिसिएशन के जैसा दिखाते हो, बट जो लंबा चलने वाला है उसको बैलेंस शीट में दिखाते हो. क्यों? क्योंकि आपको भरोसा है कि आगे भी बिजनेस कंटिन्यू होगा, चलते रहेगा. अगर मुझे लगता है एक ही साल में बिजनेस बंद हो जाएगा तो फिक्स्ड एसेट पूरा का पूरा ये साल जितना यूज हुआ डेप्रिशिएट और बाकी मार्केट वैल्यू दिखा दूंगा मैं कम करके, अभी कितना पैसा आने वाला है सीधा अभी मैंने बोला ना हमें फ्लक्चुएट नहीं करना है वैल्यू, मार्केट में क्या भाव चल रहा है हमें अभी नहीं दिखाना है. क्यों नहीं दिखाना है? क्योंकि हम अभी बेचने वाले नहीं है, बिजनेस लंबा चलने वाला है, ऐसा सोचते हैं हम. ओके, बट अगर बिजनेस एक ही साल में बंद होने वाला है तो मैं सीधा मार्केट वैल्यू पे लेके आऊंगा, ऐसा बोलूंगा ये साल में बिकने वाला है तो चेंज कर दो इसकी वैल्यू, सीधा मार्केट प्राइस पे लेके आओ और फिर बेच दो उसको. तो बोलने का मतलब जब तक बंद करने की सिचुएशन ना आए, कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, अजम्पशन कायम रहता है कोई भी बिजनेस का, दैट गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा है, लॉन्ग टर्म आइटम्स अलग हैं, शॉर्ट टर्म आइटम्स अलग है, इनकम एक्सपेंस अलग दिखाना है, बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी अलग दिखाना है. और एक चीज हमने सीखी हुई है यही कंसेप्ट के बेस में, प्रीपेड एक्सपेंसेस. रिमेंबर प्रीपेड एक्सपेंसेस? व्हाट आर प्रीपेड एक्सपेंसेस? What are prepaid Expenses paid in advance. Expenses paid in advance. Expenses paid in advance. Expenses paid in advance का मतलब क्या है? आपने पे कर दिया है, बेनिफिट मिलना बाकी है. एडवांस में पे कर दिया है, बेनिफिट मिलना बाकी है. ये प्रीपेड एक्सपेंस भी आप तभी पे करते हो जब आपको गोइंग कंसर्न का लॉजिक आपके दिमाग में है, कि आपको पता है कि ये बिजनेस गोइंग कंसर्न है. अगर कोई बिजनेस नेक्स्ट ईयर बंद होने वाला है, विल इट पे एनी एक्सपेंस इन एडवांस? सवाल ही नहीं है, पे ही नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है बेनिफिट रिकवर करने के लिए वो है ही नहीं, नेक्स्ट ईयर तो बंद होने वाला है. तो प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब तभी पॉसिबल है जब कोई बिजनेस गोइंग कंसर्न में चल रहा है. तो एज आई सेड, ये रूल्स आपको कोई बोलेगा नहीं, ये आप अपने आप फॉलो कर रहे हो, अनसेड रूल्स है. तो आप प्रीपेड एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस रिकॉर्ड करते हो, किस उम्मीद पे करते हो? कि बिजनेस आगे चलेगा, एक्सपेंस का फायदा मिलेगा, इनकम का ऑब्लिगेशन देना बाकी है नेक्स्ट ईयर, इस उम्मीद पे करते. दिस इज imbibed concept. Going concern is imbibed in any business. Okay, long period तक business चलेगा, that is the assumption. Realization concept, next one. Realization concept क्या बोलता है? Just now I told you ना, conservatism उसी के साथ है, connected concept है. Realization बोलता है कि realize income realize होगी तब record करने. Unless and until the income is realized, you are not supposed to record it in books. खास करके इनकम के लिए दिया हुआ है. जैसे कि एनरॉन के केस में मैंने बताया 20-30 साल फ्यूचर की इनकम वो अभी रिकॉर्ड कर रहा था. वाज इट करेक्ट? नो सर, लेकिन जो इनकम वो ऑलरेडी प्रेजेंट कर रहा था 20-30 इयर्स का एडवांस का, और लेकिन उसका शेयर प्राइसेस तो बढ़ा ना, तो टेक्निकली तो उसका प्रॉफिट ही हुआ बहुत ज्यादा. जो कंपनी बढ़ाना चाहता था वो तो बढ़ गया. हाँ, फिर घट भी गया ना. देखो, शेयर प्राइस बढ़ने से कंपनी बढ़ जाती है ऐसा नहीं है. शेयर प्राइस क्या होता है? इट इज अ रिजल्ट of your earnings. I'll give you a simple example. Achija Hotel is a good hotel. It's a business. आज 10 करोड़ रुपए की वैल्यू है. कल उठ के बहुत ज्यादा कस्टमर आने लगे,
फूड क्वालिटी बहुत फेमस हो गया, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, 12 करोड़ हो जाएगा। फिर पता चला अरे ये तो बॉम्बे की बेस्ट पाव भाजी बेचता है, इधर भी ऐसी नहीं मिलती, पूरे बॉम्बे से कस्टमर आने लगेगा, आउट स्टेशन से कस्टमर आने लगेगा, बिजनेस वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, 15 करोड़ हो जाएगी। वो ही आपको पता चले उसके 1 साल बाद कि मेन कुक तो भाग गया, चला गया, मर गया, अभी क्वालिटी ऑफ फूड कुछ है नहीं, अभी तो कॉकरोच वॉकरोच भी दिखा है रेस्टोरेंट में, ऐसा कुछ न्यूज आ गया, पता चला कि खाने में भी दम नहीं है, कुक्स भी चले गए, अब वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या? कम हो जाएगा कि सेम रहेगा कि बढ़ेगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ बिजनेस, दैट इज द वैल्यू ऑफ शेयर्स. Value of business is the value of shares of any business. Okay, so that share value is related to your earning. The more the profits of the business, the more will be the share price. The lesser the profits, the lesser will be the share. तो उसके जो प्रॉफिट्स थे एनरॉन के, वो खाली बुक के प्रॉफिट थे, बुक, वो खाली आंकड़े में दिखा रहा था, एक्चुअली बिजनेस में खोखा था, खाली खम वैक्यूम था, उसमें हो ही नहीं रहे थे ये जनरेट, होने का चांस था, उस प्रोबेबिलिटी पे वो नाच रहा था। अभी अचीजा होटल कल उठ के बोल रहे कि मेरा बिजनेस में 1 लाख कस्टमर आएगा नेक्स्ट ईयर, 2 साल बाद आएगा, और वो प्रॉफिट दिखा दे अभी और बढ़ा दे अपनी बिजनेस की वैल्यू, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। एक्चुअल में वो प्रॉफिट होने चाहिए ना, जनरेट होने चाहिए, एक्टिविटीज होनी चाहिए, तो आपका बिजनेस का वैल्यू जेन्युइन है। तो उसने तभी तो बढ़ा दी टेम्पररी, 1 साल 2 साल बढ़ गई वैल्यू, उसके बाद घट भी गई ऐसे ही फास्ट, जो $10 का शेयर कुछ $60, $70, $90 हो गया था, वो $90 का शेयर सीधा $10, $5, $3 भी हो गया वापस विद इन अ स्पैन ऑफ 2. तो अनलेस एंड अंटिल यू हैव जेन्युइन प्रॉफिट्स और जेन्युइन अर्निंग्स इन द बुक्स, शेयर प्राइस ज्यादा टाइम टिकने वाला नहीं है. ओके, इट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ बिजनेस व्हिच इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट. So realization concept, all of you understood what is realization concept? Disclose your income. Okay, disclose your income or record your income only when you actually earn it. Only when you actually earn it. See, mark me, I'm using the word earn, not received. Earn मतलब कमा लिया है, कमा लिया का मतलब जेन्युइन इनकम जनरेट हो गई. अभी सेल्स के केस में मेरा इनवॉइस बन गया, गुड्स डिस्पैच हो गया, तो मैंने कमा लिया, तो आई कैन रिकॉर्ड सेल्स. पैसे आगे पीछे मिले चलेगा, नॉट एन इश्यू, बट कमानी जरूरी है. मैंने एफडी रखा है बैंक में, 12 महीना हो गया, 12 महीने का ब्याज मिलना चाहिए, तो मैं इनकम रिकॉर्ड कर सकता हूँ. 12 महीने से पहले तो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, बराबर है. पैसे 1-2 महीने बाद आए चलेगा, डजेंट मैटर. तो अर्न्ड इनकम, बट जेन्युइन. और जेन्युइन का मतलब कोई आपसे वो इनकम छीन नहीं सकता, अगर छीनेगा तो आप उस पर केस कर दोगे, सिंपल एज दैट. तो ऐसी इनकम होती है जेन्युइनली अर्न्ड, श्योरिटी वाली इनकम, ओनली देन यू रिकॉर्ड इन द बिजनेस. नेवर रिकॉर्ड फेक इनकम्स इन एडवांस. दैट इज व्हाट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट. ओके, नाउ माइंड यू, रियलाइजेशन इज एप्लीकेबल ओनली टू इनकम्स, नॉट टू एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस के केस में ऐसा नहीं है, बताया था आपको कंजर्वेटिज्म. अगर आपको थोड़ा भी लगता है प्रोबेबल चांस कि एक्सपेंस होगा, दिखा दो, फिर शायद ना हो तो रिवर्स कर दो, चलेगा, कोई बात नहीं. बट एक्सपेंस के केस में क्या बोलते हैं, थोड़ा बायस्ड माइंडसेट रखो, थोड़ा डर डर के करो अकाउंट. एक्सपेंस हो रहा है एडवांस में दिखा दो, इनकम हो रही है एडवांस में नहीं दिखानी है, कमाई है तो ही रिकॉर्ड कर. ये बात समझ आ रही है? Are all of you getting this? Now this same concept, जैसे मैंने आपको बताया, कॉस्ट कंसेप्ट में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से हम भी थोड़ा चेंज कर रहे हैं. कॉस्ट कंसेप्ट बताया था आपको, याद है? हिस्टोरिकल कॉस्ट नॉर्मली भी रिकॉर्ड, बट धीरे धीरे अभी मार्केट वैल्यू पे भी रिकॉर्ड कर रहे हैं. बहुत ट्रेंड बढ़ गया है, लैंड की वैल्यू 1 लाख की 7 लाख हो गई है, तो रेयर कभी चेंज हो रहा है तो आप चेंज रिकॉर्ड भी कर सकते हो, मार्केट वैल्यू में चेंज करके दिखा भी सकते हो. सेम थिंग is happening with this concept of conservatism और realization बोलो, इसमें भी हो रहा है फॉलो धीरे धीरे. कंजर्वेटिज्म क्या बोलता है कि always provide for expense, never provide for income.
अभी ये कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पे? एक्सपेंस तो दिखा हुआ एडवांस में, वो तो है ही. इनकम अगर थोड़ा प्रोबेबल चांस है कि भैया इनकम आ जाएगी, ऐसी एनरॉन के जैसी नहीं 20-30 साल आगे वाली, 1-2 साल वाली, but you have a good, very good chance of getting that income, then you can show it in advance, provided very good chance of earning that income. Okay, ऐसा नहीं कि आज कॉन्ट्रैक्ट डील साइन की और डाल दिया इनकम. काम करने का ठिकाना नहीं है, इनकम का ठिकाना नहीं है और डाल दिया, ऐसा नहीं. Very good chance if you have of earning that income, then you can show it in advance. You can still show it in advance, it is fine. Okay? But बने तब तक be double sure about income. Okay? बहुत चांस है तो ही करना, otherwise skip करना, ignore करना. That is what is conservatism and realization regarding income and expense. बोलो, any doubt till this point? Any concept, anything? Next one. What is accrual? We have learned that. Already we have learned that. Accrual system, cash system. What is accrual concept? Bolo. Record on earned and incurred Incomes basis. must be recorded on earned earned basis basis. and Expenses on incurred. Incurred basis. ऐसा आगे पीछे आया चलेगा. ये आपको एग्जांपल भी दिया था मैंने. कैश बेसिस पे आपका कंपैरिजन डिस्टॉर्ट हो जाता है. accrual basis पे comparison easy हो जाता है इसके. Sir, it contradicts with conservatism because expense we show in advance, but here it is said that expense we should record only when it is incurred. It's not contradicting. Expenses incurred का मतलब ही वही हो गया ना, जो तुमको फ्यूचर में लग रहा है एक्सपेंस होने वाला है, वो ऐसे सोचो कि इनकर हो गया. अगर फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है कि फ्यूचर में मेरे को स्टेशनरी का 5,000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा नेक्स्ट ईयर सपोज, तो आई विल अज्यूम कि वो ये साल इनकर हो गया है 5,000. आई विल शो इट एज एन स्टेशनरी एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर, इनकर्ड एक्सपेंस. इनकर्ड का मतलब क्या है कि पे नहीं किया, पे किया या नहीं किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे गए कि नहीं गए वो इंपॉर्टेंट नहीं. एक्सपेंसेस का टाइम आ गया या एक्सपेंसेस इनकर हो गया मतलब एक्सपेंसेस यूज हो गया, ऐसा सोचो आप. ओके, पैसे देने इज नॉट इम्पोर्टेंट. तो अगर स्टेशनरी का खर्चा मेरे को लगता है 5,000 बढ़ेगा नेक्स्ट ईयर, आई विल डिस्क्लोज दैट. अभी के टाइम पे मैं दिखा दूंगा कि भैया ये 5,000 मेरा स्टेशनरी का खर्चा होने वाला है. या नेक्स्ट ईयर मैंने इलेक्ट्रिसिटी का कुछ किया हुआ है प्रोविजन, मेरे को लगता है कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी का हैवी एक्सपेंस होने वाला है, मैं अभी से उसको दिखाने की ट्राई करूंगा जितना हो सके. ज्यादा नहीं दिखा देना है, एकदम एक्सपेंस 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 नहीं दिखाना है. जो तुमको लगता है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो सकता है वो आप थोड़ा अभी दिखा सकते. जेन्युइनली जो नेक्स्ट ईयर हो रहा है वो नेक्स्ट ईयर का ही एक्सपेंस है. कुछ अनसर्टन, कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि बैड डेट्स. आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर शायद डेटर आपको 2-3,000 आपका बैड डेट्स होने वाला है, तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए वेट मत करो, उसको एडवांस में बैड डेट्स का एक्सपेंस इनकर करके बता दो अभी 2-3,000. या डिस्काउंट मांगने वाला है कोई डेटर तो 1,000 रुपीज का डिस्काउंट बता दो. Should be sure that expense is going to incur. Not too sure, still it is fine. It should be probable. More than 50-60% surety is fine. Okay, it should not be like a contingent liability where it is entirely uncertain. Contingent liability वाला entirely uncertain, मतलब कुछ expense होगा नहीं होगा, कुछ guarantee नहीं, तो फिर दिखाने की जरूरत नहीं. But you are somewhat sure in your mind that 60-70% chances है होने का, तो आप दिखा दो. एकदम वेग एक्सपेंस दिखाने की जरूरत. So accrual states what? Income and expense on earned and incurred basis. Paid is not important, earned and incurred is important. Time हो गया, record करना है, expense debit करना है, income credit करना है. Next one is dual aspect concept. What is dual aspect concept state? Dual aspect हमने किया हुआ ये भी. Every transaction has got how many aspects? 2 aspects. 2 aspects. Guys, turn on the videos. All of you turn on the videos.
फोरम, रिया, दिशिता, विराली, निशांत, स्मिथ, रुत्वा, जश, स्मिथ, निशांत, फोरम, यशवी. नाउ स्मिथ, निशांत, रुत्वा, नेटवर्क अच्छा है तुम्हारा, तो इधर स्क्रीन पे पता चल जाता है. रिया, चलो निशांत. Okay. Now, dual aspect. We have learned this dual aspect concept. What is this dual aspect concept state? Dual aspect क्या बोलता है? Every transaction has got how many aspects? How many aspects of every transaction? Two aspects. What are the two aspects? Debit and credit. It's an exchange. So dual aspect यही बोलता है कि whenever you are recording any transaction, record both the aspects, debit as well as credit. Debit will be always equal to credit, give and take, exchange. दोनों record करना है, debits as well as credit. That is what is dual entry, double entry system, foolproof system. That is what is dual aspect. And यही dual aspect से अपने को पता चला कि always and always your assets will be equal to your liability. Okay, assets, total of assets will be equal to total of liability. Liability means external plus capital. ये हमेशा balance रहता है. This is the accounting equation. This is never be imbalanced. Okay, so every transaction के बाद कुछ asset बढ़ेगा तो कुछ liability बढ़ेगा, कुछ asset बढ़ेगा तो कुछ capital बढ़ेगा, कुछ asset घटेगा तो कुछ liability कम होगा, asset घटेगा तो capital कम होगा, कुछ ना कुछ आपको दिखने वाला है changes जो balance रखेगा. That is what is dual aspect. Okay, अपना भी बिजनेस आप रिकॉर्ड कर सकते हो, दूसरे के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हो. ड्यूअल एस्पेक्ट, डबल डेबिट एंड क्रेडिट, बोथ द एस्पेक्ट्स मस्ट बी रिकॉर्डेड. देन द लास्ट हुआ डिस्क्लोजर एंड मटेरियलिटी, और एक और है मैचिंग. डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या बोलता है ये भी मैंने बताया था, इफ यू रिमेंबर. व्हाट डज डिस्क्लोजर कंसेप्ट स्टेट? बोलो. What does disclosure concept state? Disclosure, That you should tell honestly all your honest presentation of accounting information. Whatever is happening in the business, show true and fair view. Disclose, 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 disclose. Is it clear? Whatever is happening in the books of accounts in the business, show it with true and fair view without any jol. That is what is disclosure concept. What does materiality concept state then? Materiality concept क्या बोलता है? Materiality बोलता है कि disclose करना जरूरी है, बराबर है आपका बात, लेकिन जो important information है ना उसको अच्छे से disclose करो, और जो less important है उसको ignore मारोगे तो चलेगा. अभी important क्या और less important क्या? Monetary value, इकोनॉमिक वैल्यू. अगर बड़ी वैल्यू का अमाउंट है, बड़ी वैल्यू का ट्रांजैक्शन है, उसको अच्छे से डिस्क्लोज करो, उसमें झोल नहीं होना चाहिए. छोटा छोटा वैल्यू के पीछे मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, बाल की खाल नहीं उखाड़नी. ओके, तो बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू क्या है, डिपेंड्स ऑन द बिजनेस. अभी कोई शॉप है, उसके लिए 1 लाख रुपया बड़ी वैल्यू है, तो 1 लाख 2 लाख 50,000 1 लाख का वैल्यू का ट्रांजैक्शन बराबर से दिखाएगा. 100 200 300 500 रुपया छोटा वैल्यू है, उसको क्लब कर दो कॉमन अकाउंट में, या उसको इग्नोर भी कर दो रिकॉर्ड करते वक्त, कोई फर्क नहीं पड़ता. इज दैट क्लियर? तो डिस्क्लोज करो, ट्रू एंड फेयर व्यू से करो, बट मटेरियलिटी को साथ में लेके. मटेरियलिटी क्या बोलता है? डिस्क्लोज मटेरियल इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन परफेक्टली करेक्टली, उसमें झोल नहीं होना चाहिए. लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज फाइन, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत. Is that clear? So that is your disclosure and materiality concept. And the last one is matching concept. Remember this also we have done many times. I have discussed in between matching.
Match your income with your expense. Match your income with your expenses. Okay, not shadi wala match. Here we are matching our incomes with our expenses. How we will match them? By matching kundlis. How we will match incomes with expenses? Record the By income. calculating it for a particular 1 time. year time period. Okay, 1 year's income, then you take 1 year's expense. Incurred or paid or received. Incurred and earned or paid or received. Which income, which expense? Incurred and earned. Expenses incurred and incomes earned for a particular time period. For a particular time period. 3 months का ले रहे हो तो 3 months का income expense, 6 months का ले रहे हो तो 6 months का income expense. उसी को मैच करना है, वही रिकॉर्ड करना है, उसी से प्रॉफिट लॉस ढूंढना है. ऐसा क्यों करना है? अगेन कंपैरिजन बिकम्स इजियर. कंपैरिजन बिकम्स क्लियर. समझ में आ रही है बात? इसीलिए ये मैचिंग कंसेप्ट के वजह से ही वो प्रीपेड वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ये प्रीपेड वाला कंसेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? आपका रेंट ये साल का है 12,000, आपने पे किया 15,000. हाउ मच रेंट यू विल शो एज एन एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर? 12 और 15? 12,000. यू विल नॉट शो 15. व्हाई? 3,000 नेक्स्ट ईयर का है ना, तो शो इट एज नेक्स्ट ईयर्स एक्सपेंस. मैच इट विथ नेक्स्ट ईयर्स इनकम. This year you will match only 12,000 current year's expense. Did you understand? मैचिंग का अर्थ समझ आ रहा है? उधर एक और कंसेप्ट दिया हुआ है पीरियोडिसिटी. व्हाट इज दैट पीरियोडिसिटी? देखो अभी अभी मैंने एक कंसेप्ट बताया आपको, गोइंग कंसर्न. अभी लर्न किया हमने. व्हाट वाज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट? गोइंग कंसर्न. So will you wait for 14, 15, 20 years to calculate profit or loss of the business? You wait for 20 years to calculate? Every year. Every year. Recorded regular intervals. Exactly, every year. You divide the life of business into suitable time period. That is what is periodicity. आप छोटे छोटे टाइम पीरियड में पीरियड को डिवाइड करते हो बिजनेस. दैट इज पीरियोडिसिटी. और एक टाइम पीरियड में कंसेप्ट फॉलो करते हो. एक साल का इनकम, एक साल का एक्सपेंस. ओके, हमारे लिए एक साल है, कंपनीज के लिए यही 3 महीना होता है. क्वार्टरली रिजल्ट्स होता है. एवरी 3 months दे विल प्रेजेंट देयर इनकम्स, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस. ओके, एवरी 3 months दे विल प्रेजेंट देयर फाइनल अकाउंट. तो हमारे लिए 1 year है, कंपनी के लिए 3 months होता है. कोई बिजनेस के लिए 15 महीना है, उसको 15 महीने का साथ में करना है, कर सकता है, इसकी मर्जी. ओके, जनरली इट इज 1 year. जनरली इट इज 1 year. तो पीरियोडिसिटी इज नथिंग बट डिवीजन ऑफ लाइफ इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. I'll give you 5 minutes. I want you all to turn on the videos और मेरे सामने रीड करना है. ओके, स्क्रीन पे तो स्क्रीन पे देखो, टेक्स्ट बुक है तो उसमें देखो. प्लीज रीड all the concept once. 5-7 minutes, turn on the videos, please read and tell me if you don't understand a particular concept. खुद को समझ में आना चाहिए, कोर मीनिंग समझ में आना चाहिए. कंसेप्ट मतलब मीनिंग, वर्ड टू वर्ड नहीं आना है. वर्ड टू वर्ड का कोई जरूरत नहीं. Be able to understand what is given over there. Ask me if you don't.
सर नेक्स्ट पेज करो ना। टेक्स्ट बुक नहीं है? नहीं, पीडीएफ ओपन कर ले। पर मैं फोन से हूँ ना, इसीलिए वीडियो। So Yeah. another example for consistency concept could be that if a firm is using a cash system for recording its transactions and then it shifts to the double entry system or Accrual system. yeah, Cash to accrual. yeah, But what is the thing? Companies के लिए ना cash system is not allowed only. no, I'm talking about Small businesses and all. हाँ, you can name it as one of the principle. Yeah, policy. Cash से accrual करने. yeah. बराबर. देखा? Yeah, go through. All of you. Any doubts? Now, next part is accounting standards. Okay, accounting standards and IFRS. Okay, what is accounting standard? Accounting standard और IFRS का मतलब क्या है? देखो, अभी हमने इतने सारे कंसेप्ट पढ़े
अगर मैं आपको बोल दूं कि रोड क्रॉस ध्यान से करना, जब रेड सिग्नल हो तब रोड क्रॉस करना, ग्रीन सिग्नल हो तब रुक जाना, ओके। स्कूल में बोलते हैं आपको नेल्स टाइम पे कट करना, हेयर टाइम पे कट करना, दीज आर ऑल गुड मैनर्स। तो कोई फॉलो नहीं करने वाला। गुड मैनर्स गया कचरे के डब्बे में। लेकिन अगर स्कूल में रूल बना दिया कि हेयर, बॉयज का हेयर अबाउट 3 इंचेस तो सीधा फाइन, पनिशमेंट, उठक बैठक, या फिर नेल्स चेकिंग करेंगे, आपका नेल बड़ा निकला सीधा डंडी पड़ेगा। तो एवरीवन फॉलोज दैट, राइट? everyone follows that. So the same thing happens with businesses and big businesses and organizations. Concepts करके बोला तो no one is going to follow. हाँ ठीक है, सिस्टम है, ट्रेडिशन है, ठीक है। बट उसी कंसेप्ट को अगर आप फॉर्मल नेचर दे दो, एक फॉर्मल रूल बना दो, तो एवरीवन विल फॉलो इट, क्योंकि पनिशमेंट का डर रहेगा। बराबर है? तो what are accounting standards? Accounting standards are nothing but formalized concepts. Concepts को rules में convert कर दिया है और अलग अलग टाइप के concept के लिए अलग अलग standards बना दिए, so that companies follow them with utmost strictness. Okay, follow them with utmost strictness. If they don't, then penalty will be imposed on the company. Is this clear? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है? जो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, उनकी गवर्निंग बॉडी ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। तो ये ICAI गवर्निंग बॉडी है, जो CA लोग ही होते हैं, CA लोग का ग्रुप है। वो अपने मर्जी से नहीं बनाते हैं, दे कंसल्ट विद द गवर्नमेंट, दे कंसल्ट विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेक्रेटरी, उसके बाद सबका इनपुट लेके, सब जनरल पब्लिक का ओपिनियन लेके, कंपनीज का भी ओपिनियन लेके, सबका मिला के स्टैंडर्ड्स आते हैं मार्केट में। So at present there are around 34 to 35 standards. Okay, these are nothing but formalized concepts कि हर एक कंपनी को ये स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी है, कंपल्सरीली फॉलो करना जरूरी है, इसमें कोई बांधछोड़ नहीं चलेगा। इज दिस क्लियर? अगर उसने किया तो उसको पेनल्टी। गॉट इट? स्टैंडर्ड्स आर कंपल्सरी ओनली फॉर कंपनीज, not for sole proprietors, not for partnership firms. Okay, तो स्टैंडर्ड्स का मतलब समझ में आ रहा है? बेसिकली व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? दीज फॉर्मलाइज्ड कंसेप्ट्स को एक फॉर्मल रूल दे दिया, ठीक है। इसके वैसे तो 35 है, आपको थोड़ी बहुत लिस्ट दी गई है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, खाली हेड्स याद रखना। आगे जाके आप डिटेल में ये स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं हायर स्टैंडर्ड्स में। ओके, तो एक AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर है। इधर वो डिस्क्लोजर कंसेप्ट पढ़ा था ना, सब कुछ डिस्क्लोज करो ट्रू एंड फेयर व्यू से, इसको स्टैंडर्ड बना दिया, इस सब कुछ ट्रू एंड फेयर व्यू से डिस्क्लोज करना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अगर नहीं करते हो तो AS1 वायलेट हो गया, दैट इज द मीनिंग। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इज फॉर डिस्क्लोजर। वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन। दिस ऑल्सो यू विल लर्न नेक्स्ट ईयर। स्टॉक को वैल्यू करना, क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस उस पे। हेलो, yeah. So AS1 audible? AS1 accounting standard 1 was for disclosure. Accounting standard 2 is for stock. मतलब वो स्टैंडर्ड में दिया गया है कि हर एक कंपनी को अपना स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक, उसको कैसे वैल्यू करना है, क्या मेथड अडॉप्ट करना है, सब दिया हुआ है। तो ये स्टिक टू करो, ये फॉलो करो आप, ये स्टैंडर्ड हो गया स्टॉक का। उसमें कंजर्वेटिज्म है कि अगर स्टॉक का भाव कम हो रहा है तो एडवांस में दिखा दो, और नहीं हो रहा है तो दिखाने की, बढ़ रहा है मतलब ज्यादा प्राइस है तो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली AS2 डील्स विद कंजर्वेटिज्म वाला कंसेप्ट। ओके, देन थर्ड कंसेप्ट, थर्ड स्टैंडर्ड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट।
ये आपका कैश दिखाता है, बिजनेस में कितना कैश आया कितना कैश गया, इसको कैसे प्रेजेंट करना है, इसका स्टैंडर्ड है। वैसे AS6 इस डेप AS6 अभी निकाल दिया है, AS6 अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। AS10 है, फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट कैसे मेंटेन करना है ये स्टैंडर्ड में दिया हुआ है। देन यू हैव AS19 है, लीजेस का है। AS8 है तुम्हारा रिसर्च का, AS9 है रेवेन्यू रिकग्निशन का। तो ये सब आपको डिटेल में सीखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली सब कंसेप्ट बेस्ड ही है, खाली कंपनी को कंपलसरी रूल्स बना दिया स्टैंडर्ड करके। AS9 जैसे रेवेन्यू रिकग्निशन इज बेस्ड ऑन रियलाइजेशन कंसेप्ट, इनकम मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज अर्न्ड, उससे पहले नहीं करने का। AS9 is based on realization concept, AS2 is based on conservatism, AS1 is based on disclosure, AS10 fixed asset is based on consistency, एक बार कोई पॉलिसी की तो उसको कंसिस्टेंट रखो। ये कंसेप्ट के बेस पर ही स्टैंडर्ड्स है, आपको खाली हेडिंग्स थोड़ा याद रखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, उसमें भी सब नहीं। कौन सा याद रखना है? AS1 डिस्क्लोजर, मैं इधर मार्क कर देता हूँ, AS1 डिस्क्लोजर, AS2 inventory valuation, stock valuation, AS10 fixed asset, और AS6 एक्चुअली निकाल दिया अभी बट सिलेबस में है आपको, तो AS6 डेप्रीसिएशन। बस ये 4 खाली याद रखना। नंबर और डेट वेट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली नंबर और इसको डील करता है। AS1 disclosure, AS2 inventory, AS6 depreciation and AS10 fixed asset. Okay. What is IFRS? IFRS stands for International Financial Reporting Standards. जैसे इंडिया के CA मिलके इंडिया के स्टैंडर्ड बनाते हैं ना, वैसे यूरोप और अदर कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम यूएसए में गैप चलता है, GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यूरोप एंड अदर कंट्रीज, इंग्लैंड एंड ऑल, दे फॉलो IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। वो क्या है? यूरोपियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी अथॉरिटी है, जिसको बोलते हैं ये अपनी ACCA, एसोसिएटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री होती है, एसोसिएटेड चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, उसके सीए को ACCA बोलते हैं। यूके यूरोप वाले जो एसोसिएशन होते हैं वो लोग जो स्टैंडर्ड्स बनाते हैं उसको बोलते हैं IFRS। बेसिकली वो भी कंसेप्ट बेस्ड ही है, फॉर्मलाइज्ड कंसेप्ट्स एंड स्टैंडर्ड्स है, लेकिन क्या है, उनकी कंट्री डेवलप्ड है तो उनके हिसाब से स्टैंडर्ड थोड़े अलग है। इंडिया थोड़ी डेवलपिंग है तो हमारे स्टैंडर्ड थोड़े अलग है। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था, याद है, ये हम कंसेप्ट थोड़े थोड़े चेंज करते हैं, कंजर्वेटिज्म को चेंज कर रहे हैं, थोड़े थोड़े इनकम भी दिखा रहे हैं, कॉस्ट कंसेप्ट को चेंज कर रहे हैं, अभी मार्केट वैल्यू पे भी थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट करने का चालू किया है। याद है मैंने बताया था, वी आर चेंजिंग द स्टैंडर्ड, वी आर चेंजिंग बिकॉज वी आर मर्जिंग देम विद IFRS। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ इंडियन स्टैंडर्ड्स को धीरे धीरे हम लोग मर्ज कर रहे हैं, सो दैट ग्लोबली एक कॉमन स्टैंडर्ड हो जाए सबके। ओके, सो IFRS स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, AS stands for accounting standard, Indian standard. Okay, basically standards are formalized concepts so that everyone follows them compulsory. और जो मर्ज स्टैंडर्ड्स है, IFRS को जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मर्ज कर दिया गया है, उससे नए स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, उसका नाम है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन AS, INDAS, उसको INDAS बोला जाता है। ओके, सो अभी फिलहाल इंडिया में कौन सा स्टैंडर्ड यूज हो रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो पुराने वाले चालू हैं और थोड़े बहुत जो नए वाले से मर्ज हुए हैं, इंडियन AS। तो अभी फिलहाल AS एंड इंडियन AS दोनों फॉलो हो रहा है इंडिया में। बट जब तक आप बाय द टाइम सपोज कोई CA हो गया 5-7 years डाउन द लाइन, सब कुछ इंडियन AS ही बन जाएगा। एवरी स्टैंडर्ड मोस्टली विल बी मर्ज विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये प्रोसेस चालू है, बाय द टाइम 3-4 years 5 years गोज अवे ये हो जाएगा। तो होने ही वाला है, Indian standards will be only standards left by the time you become CA or anything, okay, after your graduation. तो फिलहाल दोनों चल रहे हैं, accounting standard and Indian accounting standard. Okay, so this was just the background, just you need to know
कोई पूछने वाला नहीं है इसको। अभी आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स पे, ये जरूर पूछेंगे, ये आपको परफेक्टली आने चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में थोड़ा भी कंजूसी नहीं, एक एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का 100% श्योरिटी होनी चाहिए, इसी में से दे आस्क, इसी में से इट विल कम। I think we have already discussed till term, right, in the last lecture. Okay, next is multiple choice question. Don't look at the answers. Tell me, surplus of income over expenses is called Profit. surplus over income Profit. expenses is profit. In a dash basis of accounting, actual cash receipts and actual cash payments are recorded. Actual Cash. Cash. Accrual में कैश हमने देखा था ना, कैश अक्रूवल एंड हाइब्रिड। कैश सिस्टम में रोकड़ा आया, रोकड़ा गया, कैश रिसीट कैश पेमेंट। अक्रूवल में अर्न्ड एंड इनकर्ड, इनकम्स अर्न्ड एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड, नॉट कैश बेस। एंड मिक्स्ड हाइब्रिड इंडिया में नहीं है, उसमें दोनों होता है, एक्सपेंसेस ऑन इनकर्ड एंड इनकम्स ऑन कैश बेस, वो नहीं है। दिस इज कैश बेस। Amount which is not recoverable from a customer is known as Bad debts. Bad debts. Accounts must be honestly prepared and they must disclose all material information is known as Disclosure. यहाँ पे डिस्क्लोजर है ऑप्शन में। सपोज मटेरियलिटी होता तो आप मटेरियलिटी लिखते, दोनों नहीं देगा, या डिस्क्लोजर या मटेरियलिटी। इसमें बेटर आंसर इज मटेरियलिटी बिकॉज मटेरियल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है साइड। ओके, तो इधर डिस्क्लोजर है तो यू राइट डिस्क्लोजर। Commodity in which a trader deals regularly. Goods. Goods. All of you are knowing this? All of you are able to do this? Hello? Commodity in which a trader dash means the reputation of a business valued in terms of money. Goodwill. कैश फ्लो स्टेटमेंट, अच्छा एक और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी AS3. मार्क कर दो, कैश फ्लो भी मार्क कर दो, Yes. AS3 भी मार्क कर लो, ऊपर AS3 भी मार्क कर लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट is prepared and presented for the period for which profit and loss is prepared. कौन सा AS बोलता है इसको? AS3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये बोलता है कि प्रॉफिट लॉस तो दिखाओ, अर्न्ड इनकर्ड, और रोकड़ा भी दिखाओ, कितना रोकड़ा आया कितना रोकड़ा गया। दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, व्हाट इज AS10? व्हाट इज AS10? AS10 deals with, accounting standard 10 deals with Fixed assets. Assets. fixed asset का presentation, depreciation methods. AS6 deals with again depreciation, अभी scrap हो चुका है, अभी 10 में merge हो गया वो। AS2 deals with stock valuation, inventory valuation। खाली थोड़ा अभी नाम पता करना जरूरी है, डिटेल्स जरूरी नहीं है। Immediate recognition of loss is supported by the principle of conservatism। याद आया? Immediate recognition of loss, एडवांस में दिखा दो। Brief explanation of any journal entry is called Narration. narration। An act of exchange of things or services between two parties, Transaction. Transaction. transaction। If you're comfortable, any doubts? Next. Answer true or false. Bookkeeping and accounting is one and the same thing. False. 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 Very much false. One involves recording, one involves analysis, recording, presentation, classification, decision making. Conservatism means to follow safe side. True. 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 Safe side, डर डर के करो अकाउंट्स। डर डर के मतलब डर के नहीं, मतलब लॉसेस को एडवांस में प्रोवाइड करो और इनकम्स को मत करो। डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। True. Two aspects, debits and credits. Bank overdraft is an asset for the business. False. False. The liability. Overdrawn, ज़्यादा withdraw किया, चुकाना बाकी है. This is false. Then, solvent person is a person whose assets are more than his liabilities. True. More than or equal to. Cash discount does not appear in the books of accounts. False. False. It appears. Which discount doesn't appear? Trade discount. Trade discount. A transaction is concerned with money or money. True. Money और money is worth मतलब monetary value होनी चाहिए ना, वही transaction होता है record करने के लिए, right?
एयर, सी वाटर, सनलाइट, ये सब ट्रांजैक्शन नहीं है. अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. True. In civilization, accounting was done by owners. Earlier times of civilization. In earlier times of civilization, accounting was done by owners. False. They are agents. They're the agents. wealthy people, करोड़पति, kings, उसका मुनि, मुंशी. Bookkeeping is useful to find out all the tax liabilities. True, false? True. टैक्स पता चलता है ना आपको, इनकम टैक्स कितना देना है, जीएसटी कितना भरना है आउट ऑफ बुक कीपिंग. रिकॉर्ड करोगे तो पता चलेगा. अग्री और डिसअग्री? अकाउंटिंग इज यूजफुल ओनली टू द ओनर. Disagree. False. Disagree. Bookkeeping is an art, science and profession. True. Agree. Art, science क्योंकि it follows rules. Art क्योंकि आपको हर बार रिजिडली फॉलो नहीं करना है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है. प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज अ प्रोफेशन. बिल्स पेएबल इज एन एसेट फॉर द बिजनेस. Disagree. In bookkeeping and accountancy, only non-monetary transactions are recorded. Disagree. Totaling of journal or ledger is called as casting. Agree. Complete the following sentences. Revenue arising as a result of business transaction is known as Income. बताया था आपको, इनकम और रेवेन्यू एक ही है. Excess of gross profit over operating expenses. Profit. Which profit? It is called operating profit. This is called operating profit. Now listen. ये कंसेप्ट एक्चुअली फाइनल अकाउंट्स में आता है, लास्ट चैप्टर में. आपको मैं छोटा सा आपको बताता हूँ एग्जांपल देके. आपका सेल है 50,000, आपका परचेज है 40,000, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? सेल्स 50,000, परचेज इज 40,000, तो प्रॉफिट इज 10,000, राइट? सेल माइनस परचेज, अग्री? इनकम माइनस एक्सपेंस 10,000. This profit is called as gross profit. This profit is called as gross profit. ठीक है? माइनस इसमें से मैंने समझो कोई डिस्काउंट अलाउ किया. डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस 2,000. तो अब कितना बचा प्रॉफिट? 8,000. दिस इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट. दिस इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट. इसी को जनरली हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ओके. नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा फर्क है. ये 8,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट है. अगर इसमें मेरे बिजनेस में 1,000 का गुड्स जल गया, लॉस बाय फायर हो गया, 1,000 का लॉस बाय फायर हो गया, तो अब मेरा फाइनल प्रॉफिट कितना हो गया? 7,000. तो ये 7,000 नेट प्रॉफिट कहा जाएगा और ये 8,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाएगा. ऑपरेटिंग मतलब रेगुलर ऑपरेशन से आया हुआ प्रॉफिट. गॉट इट? जनरली आगे तो आग वाग लगती नहीं है बिजनेस में एवरी ईयर, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही जनरली आपका नेट प्रॉफिट हो जाता है. बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो आपको दिया है ना क्वेश्चन में. एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरली वही नेट प्रॉफिट हो जाता है. नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग भी हो सकता है. अलग कब होगा? दिख रहा है नीचे. अलग कब होगा? जब आपके पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी है. नॉन ऑपरेटिंग मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं हो रहा है. लॉस बाय फायर, फ्लड्स, थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इन्वेस्टमेंट. नॉन ऑपरेटिंग, रेगुलर ऑपरेटिंग नेचर के नहीं होते, उनको अगर इंक्लूड कर लिया तो नेट प्रॉफिट मिलता है, और अगर उनको एक्सक्लूड कर लिया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है. इज दिस क्लियर? An expenditure which is basically revenue in nature but the benefit of which is not exhausted within 1 year. कल किया था हमने, if you remember. Deferred revenue expense. याद है? एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट, हेवी लीगल एक्सपेंस. ओके. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसका दूसरा नाम क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस का दूसरा नाम याद है किसी को?
fictitious assets. fictitious asset. Fictitious Fictitious asset. Okay, fictitious asset. Kalpanik asset. The amount deducted by the seller from the list price of the goods at the time of sale. Trade discount. Trade discount. A person to whom business owes money for goods or services. Creditor. Creditor. Hope this is clear, all of you. So I think we have completed the first chapter with this. Okay. Now second chapter, I'll start second और third का objective. दोनों हमारे हो जाएंगे next lecture में, और उसके बाद I'll immediately start with accounting equation. So next lecture is very, 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 very important. A new topic, not a new chapter, new topic, accounting equation I'm going to start, which is very interesting from practical business point of view. जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन समझ आ गई उसको बुक कीपिंग का बेसिक ज्ञान आ गया, समझ लो. ओके, जड़ी बूटी टाइप्स है. तो sadly every year only NM keeps it in portion, rest all the colleges omit them. Okay, but I to teach, मेरा तो हर साल का है, I teach all the colleges, so you learn it. Very important concept from practical point of view. कॉलेज बेस के हिसाब से सोचना भी मत. ओके, आगे जो कॉलेज में आ जाएगा एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेना. एक्स्ट्रा करोगे आपको आगे हेल्प ही करने वाला है. ओके, so don't remain absent. Very important concept. Next lecture. Still if you have any doubts you wait. Homework आपको मिल जाएगा. Okay, otherwise you can leave. Bye bye. Take care. Bye sir, thank you. Thank you.